So today we have a session with Naman sir, uh, who's a very qualified and a very experienced teacher, who has mentored many students in this road of on the road of success. So I'll add him. Kindly join the session. Good afternoon, sir. Good afternoon. So a very warm welcome from Team Guide IAS. I hope you're doing great. Thank you. Thank you. I'm doing fine. Thank you. Right. So, sir, we'll start with the session. So, I'll give a very short introduction about Naman sir. Naman sir has an experience of more than 8 years of teaching, especially in this field, and has personally mentored many students on their road to success. So, thank you so much for sparing time and coming here to motivate and to guide so many people here. So, first question that we've been frequently asked on the page is that the pattern or the trend for prelims is constantly changing. So, how do we understand that change and how do we conquer that change? Yes. Thank you, ma'am, for inviting me here on this session. It's my pleasure to be here. See, now, one thing that I must tell aspirants is that, you must know what is the cutoff and how much sectional analysis you can understand from the past year papers, right? So, अगर आप 2012 से prelims का analysis देखें, right? So, from 2012, there has been a drastic change in the exam pattern. 2012 में हमारे environment के only 10 questions आते थे out of 100 in the prelims exam. Now the number has gone up to 20 questions. So without any doubt, environment becomes an important topic. Right. Then science and tech, which has only 5 to 7 questions in 2012, it has reached up to 20 to 25 questions, like in 2019 and 17, especially. In fact, in 2016, we had 37 questions from science and tech. So yes, in every 5 to 6 years, there is a change in prelims examination. देखिए मेंस और प्रीलिम्स में मेजर फर्क यही होता है कि प्रीलिम्स के अंदर देर आर ओनली 100 क्वेश्चंस एंड देर आर 9 सब्जेक्ट्स विच यूपीएससी हैज टू अकोमोडेट. तो उसके अंदर पैटर्न चेंज करना बहुत आसान हो जाता है. पैटर्न चेंज करना बहुत आसान हो जाता है, जो कि हुआ है पिछले 4-5 साल के अंदर. सो द फर्स्ट थिंग दैट एस्पिरेंट्स मस्ट रिमेंबर एंड आंसर टू योर क्वेश्चन इज that you should see past 10-year sectional analysis, and without any doubt the 5 subjects that you need to crack prelims exam is polity, economy, history, and now it is environment along with a bit of current affairs and science and technology. So there has been a change in pattern, but yes, we will prepare according to that, right? Okay, thank you so much, sir, for the answer. So the next question that is being frequently asked is that since it's 6 months left for the prelims 2021, so how do we prepare for that? Yes. See, the thing is, most of the aspirants get into this habit of solely focusing on prelims exam, right? Which gets them trapped in a vicious cycle, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, सिर्फ prelims पे focus करते रहते हैं. और अगर खाली प्रीलिम्स निकल भी जाता है, बहुत कम होता है ऐसे एस्पिरेंट्स के साथ, अगर खाली प्रीलिम्स निकल भी जाता है तो वो मेंस के को क्रैक नहीं कर पाते हैं, एंड अगेन दैट अनदर ईयर इज रिपीटेड, राइट? सो वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी एकदम साथ में होती है, राइट? सी फॉर एग्जांपल, अगर आप लेट्स से पॉलिटी का कोई या ज्योग्राफी का कोई टॉपिक कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर, सो यू नो दैट एटमॉस्फेयर हैज 4 लेयर्स, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर, राइट? तो आपके वो 4 सेशन. अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो एस्पिरेंट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, वो नोट्स नहीं बनाते. दे जस्ट गिव अवे द नोट्स कि यार ये तो पीडीएफ में मिल ही जाएगा, ये किसी मैगजीन में आ ही जाएगा. उससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि जब वो प्रीलिम्स के पास पहुंचते हैं, दे हैव 10 बुक्स, दे डोंट नो नोट्स ऑफ एनीथिंग एंड दे आर नॉट एबल टू क्रैक दैट, क्योंकि उनके माइंड में एक मिसकंसेप्शन बैठी है कि नोट्स तो सिर्फ मेंस एस्पिरेंट्स बनाते हैं, प्रीलिम्स वाले नहीं बनाते हैं. सो हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स व्हेन 6 months इज देयर? सी फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम को निकालने के लिए यू ओनली नीड 2.5 months. सी जैसे आप देख सकते हैं, जो हमारा इंटरव्यू होता है वो फेब में होता है और उसका रिजल्ट जो है मार्च में आता है,
राइट? अगला Mhm. एग्जाम जून में होता है, यू ओनली हैव 2 months. तो लेट्स से 2000 पीपल अपियर फॉर इंटरव्यू, राइट? उनमें से 800 900 का सिलेक्शन होता है, एंड देन देर आर लेट्स से 1000 1200 पीपल जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. आप Mhm. देखिए वो इंसान जिसका इंटरव्यू में नाम नहीं आया है, वो एस्पिरेंट, ही शॉक्ड, ही इज अगेन एंड अगेन स्क्रॉलिंग डाउन द लिस्ट कि मेरा नाम क्यों नहीं आया है, राइट? तो वो 15 दिन तो शॉक में ही निकाल देता है, डिप्रेशन के अंदर. लेकिन एक फैक्ट है, अगले साल उसका प्रीलिम्स कभी रुकता नहीं है. एक बार जो इंसान इंटरव्यू पे पहुंच जाता है या प्रीलिम्स निकाल देता है, उसका कभी बाद में इंटरव्यू प्रीलिम्स नहीं रुकता है. सो यू सी, व्हाट आई एम प्लानिंग टू टेल यू इज कि उसके पास सिर्फ 2 महीने होते हैं प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि वो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, राइट? और जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनके पास 6 मंथ्स हैं प्रिपरेशन का. लेकिन फिर भी वो 2 महीने में एग्जाम निकाल देता है और बाकी लोग नहीं निकाल पाते हैं. उसका सोल रीजन यही है कि उसे एक चीज पता है कि जब उसने पिछली बार तैयारी करी थी मेंस की या प्रीलिम्स की, उसने नोट्स बनाए थे, अब उसमें सिर्फ अपडेशन करना है. वाइल फॉर ऑल द अदर कैंडिडेट्स जो सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करते हैं, उनके पास नोट्स होते नहीं है, तो प्रीलिम्स के पास इतना प्रेशर हो जाता है, दे एंड अप नॉट स्टडिंग एनीथिंग ओनली. See, just remember one thing that I must tell. I tell this to all my aspirants. All the people who are writing the PDFs for you or current affair magazines or anything, they all are the people जिनका एग्जाम नहीं निकला है. दे आर सीरियस एस्पिरेंट्स जो आपके लिए नोट्स बनाते हैं. सो if you are dependent on them, see, if they can write those notes, it means you can also write. You have also prepared the same thing. It's just that कि माइंड में आपके एक चीज बैठ गई है कि हमें दूसरे का ही एनालिसिस लेना है. सी, लक्ष्मीकांत सर जिनकी बुक पॉलिटी के लिए इतनी फेमस है, वो आंध्र प्रदेश के अंदर अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, एंड ही हैज गिवन ट्वाइस मेंस इन एंड देन ही इज राइटिंग सच अ ब्यूटीफुल नोट्स ही हैव रिटन. Everybody follows that Lakshmikant book for polity. But what you don't remember is कि अगर वो तैयारी करके खुद नोट्स बना सकते हैं, why you have to be dependent on other thing? So first thing, Mhm. सी, आई नो थोड़ा ज्यादा हो गया, पर जल्दी से, अगर आपको इसका आंसर चाहिए कि क्या 6 मंथ्स के अंदर प्रिपरेशन हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है. आज है, लेट्स से टुडे इज दिसंबर, वी आर इन दिसंबर. दिसंबर से लेके 15 फरवरी 20 तक आपको अपने मेंस के वो टॉपिक करने हैं जो आप प्रीलिम्स के बाद सिर्फ रिवाइज करेंगे, जैसे पेपर 4 एथिक्स, और अपना ऑप्शनल का एक पार्ट कंप्लीट कर दो, इधर पार्ट 1 और पार्ट 2. बिकॉज आई कैन Right. फ्रैंकली टेल यू, प्रीलिम्स के बाद जो 3 महीने होते हैं उसके अंदर आपका ऑप्शनल नहीं हो सकता है जिससे आपका 300 मार्क्स प्लस हो जाए. तो टिल February 20th प्रिपेयर द मेन सब्जेक्ट along with the current affairs. फ्रॉम February 20th pick up subjects. देखिए, I don't know what your next question is, but let me tell the strategy right here, how to go for prelims 2021. तो आप देखिए, February 20th को जब आप अपना मेंस कर लेंगे, अब सी, शॉर्ट टेक्निक है, इसे थोड़ा ध्यान से जो भी लोग समझ रहे हैं उसे कोशिश करिएगा देखने की. देखिए, अगर आप पिछले 15 years का प्रीलिम्स पेपर उठाएं, राइट, सो 18 to 22 क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी से, 18 to 22 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमी से, 15 to 20 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री से. ओवरऑल 55 क्वेश्चन आपके पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री से आते हैं. 55 क्वेश्चंस, एंड 50 क्वेश्चंस अगर आप खाली मॉडर्न इंडिया उसके अंदर पिक कर लें. एस्पिरेंट्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं पॉलिटी के साथ और इकोनॉमी के साथ. अब दो प्रॉब्लम जो सबके साथ होती है, सी, लेट मी जस्ट टेल यू, आई कैन टेक 5 minutes, राइट, टू एक्सप्लेन दिस, है Yes, ना? sir. You can. तो Like आप you देखते have the हैं. free idea. No Okay. problem. So you see, 55 questions are there, which is polity, economy and history. अब हर एस्पिरेंट को पॉलिटी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इकोनॉमी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या करता है, इन सब्जेक्ट्स को एंड के लिए रखता है कि प्रीलिम्स के पास पढ़ेंगे, और एडेड प्रेशर में पढ़ नहीं पाता है, ना इसमें स्कोर कर पाता है Right. ना बाकी सब्जेक्ट्स में. कट ऑफ पिछले 3 साल के अंदर गई है 98, 98, 106, which means if you score 110 marks in prelims, let's say 56 questions if you are clearing, आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा, सवाल ही नहीं है. 55 क्वेश्चंस आपके उन 3 सब्जेक्ट से हैं जो आपको पसंद है, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट्स का पेपर नहीं निकलता, क्योंकि वो फालतू के सब्जेक्ट्स में टाइम वेस्ट कर देते हैं. तो पॉइंट नंबर 1, व्हेन यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स प्रिपरेशन, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से पहले पिक करो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है. आपको पॉलिटी पसंद है, पिकअप पॉलिटी, और पॉलिटी को लेट्स से 15 डे टाइम बाउंड आप टारगेट रखें. 15 डेज के अंदर आप कहो कि आप पॉलिटी कंप्लीट करोगे, सेक्शनल टेस्ट दोगे. वंस योर पॉलिटी इज डन, शिफ्ट टू इकोनॉमी. देन योर इकोनॉमी इज डन, शिफ्ट टू मॉडर्न इंडिया जो आपको पसंद होता है, राइट? Mhm. आपके 55 क्वेश्चंस डन हो जाएं, देन मूव टू एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक टॉपिक्स. एस्पिरेंट्स उल्टा करते हैं. सी, जस्ट एनालॉजी जो बाकी लोग देख रहे हैं वो बोर ना हो जाएं.
सी मराठास एम्पायर, जो मराठास थे ना हमारे यहाँ, देखो वेरी पावरफुल, वेरी स्ट्रॉन्ग, गुरिला वॉरफेयर के लिए जाने जाते थे, छिप के अटैक Mhm. करते थे, सडन अटैक करते थे। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के अंदर, लाइक वो मराठवाड़ा रीजन में फाइट करते हैं। सी औरंगजेब की 30 ईयर कैंपेन्स हुई थी, 30 ईयर कैंपेन हुई थी, पर मराठास को हरा नहीं पाए, राइट। पर थर्ड Mhm. बैटल ऑफ पानीपत के अंदर मराठास अपना ग्राउंड छोड़ के पानीपत आगे लड़ने, विच इज एन ओपन बैटल फील्ड, and you see 3 generations of Marathas were slaughtered by Abdali in third battle of Panipat 1761। आपको इससे क्या सीख मिलती है कि जो सब्जेक्ट्स आपके स्ट्रांग हैं, जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं, उसको पहले करो ताकि पेपर में आपके साथ बैटल ऑफ पानीपत ना हो जाए, वरना यही Mhm. होगा, यू विल बी सिटिंग इन चंडीगढ़, पंचकुला, दिल्ली फॉर द सेंटर, लेकिन आपको पानीपत वाली फील आएगी, राइट। सो हाउ टू प्रिपेयर, पिक अप सब्जेक्ट्स, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, finish that in time bound manner, and then go to environment and science and tech, preference ऐसे रखनी Right. है। Sorry to take so much time, yes। No, no, sir. Like you are the free, and everybody is here to listen you and your valuable advice. So thank you so much, sir, for the wonderful answer. Sir, there are questions about the standard book list that people should go for in these 6 months of preparation. Also, along with that, the which are NCRTs preferable to go for the preparation or not? So please tell everybody. यस, सी नॉर्मली जो यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन होती है 10 मंथ्स की होती है, बट बिकॉज नाउ द एग्जाम इज 6 मंथ्स अवे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, इट्स 6 मंथ्स अवे, Mm-hmm. सो यू डोंट हैव द लिबर्टी टू स्टडी ऑल द एनसीईआरटीज, ओनली द इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, यू नो, जिस सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो वहां जाना है। जैसे मैं आपको स्टैंडर्ड बुक लिस्ट बता सकता हूँ। प्रायोरिटी पे पहले पॉलिटी जो पढ़ना है आपको, पॉलिटी के अंदर आपकी +2 की बुक होती है एनसीईआरटी, विच इज अ मस्ट, इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, पॉलिटिकल साइंस की बुक है। नोट्स नहीं बनाने आपको, सिर्फ पढ़ना है। नोट्स नहीं बनाने, 3 दिन में कवर हो जाएगी। पिछले 3 साल के अंदर से 7 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैव कम फ्रॉम दैट एनसीईआरटी। व्हाट इज द रिलेशनशिप Mm-hmm. बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी एंड लिबर्टी, सीधा क्वेश्चंस थे, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी से पिक किया है। 3 दिन के अंदर आप अपनी एनसीईआरटी करो, नोट्स नहीं बनाने। उसके बाद यू हैव टू स्टडी अ हायर लेवल बुक ऑफ लक्ष्मीकांत, जिसमें नोट्स ऑलरेडी हैं, पर आपको बेटर समझ आएगा एनसीईआरटी होने के बाद। सो फॉर पॉलिटी यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी +2 एंड देन लक्ष्मीकांत, वो नोट्स फॉर्म में ही है, उसके साथ आप उसके टेस्ट दे दो ताकि आपका अंडरस्टैंडिंग पावर क्लियर हो जाए, फॉर पॉलिटी। सेकेंड प्रेफरेंस इज इकोनॉमिक्स। फॉर इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक सर्वे का जो इकोनॉमिक सर्वे आपका फेब में आएगा, उसकी समरी आती है, हर जगह अवेलेबल होती है आसानी से। तो उसकी समरी का जो वॉल्यूम 2 होता है, वो हर चैप्टर आपके सिलेबस से है, फिजिकल पॉलिसी, मनी एंड बैंकिंग एंड व्हाट नॉट। तो उसको रेफरेंस में रख के आप अपने नोट्स पढ़ सकते हैं, एंड एनी स्टैंडर्ड बुक दैट यू हैव टू गो, इधर रमेश सिंह और यू कैन गो फॉर श्री राम नोट्स, राइट, दैट आर इजीली अवेलेबल ऑन Amazon इजीली, राइट। तो आप इकोनॉमी के लिए वो कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए वो कर सकते हैं, इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है अब फॉर प्रीलिम्स 2021, for economic survey and the Ramesh Singh or any other book that you want to go Mm-hmm. for economy। For geography, there is no standard book, but yes, एक प्रतियोगिता दर्पण की स्पेशल एडिशन आती है ज्योग्राफी की, जो कि मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को नहीं पता होता, राइट। तो ज्योग्राफी के लिए आपको +1 और +2 की एनसीईआरटी पढ़नी है, ओल्ड एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए, वो एनसीईआरटी एंड प्रतियोगिता दर्पण स्पेशल एडिशन आपको अमेजोन पे आसानी से मिल जाएगी। मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता, यू हैव टू गो फॉर दैट, राइट, फॉर ज्योग्राफी। फॉर हिस्ट्री Right. यू हैव दैट स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया, राइट, अभी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न इंडिया। एंड फॉर आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट एंड मिडिवल, जिसके कुछ ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, Mm-hmm. एनसीईआरटी से अब नहीं चलेगा, क्योंकि पिछला जो चल रहा है उसके लिए देयर इज अ बुक ऑफ पूनम दलाल फॉर एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, वो आपको पढ़नी है, उसमें आराम से 15 to 20 days लगेंगे। इट इज वर्थ, यू हैव टू स्टडी दैट, दैट इज फॉर हिस्ट्री। एनवायरमेंट के लिए आपका शंकर आईएएस की बुक होती है, right, along with the current affairs, and for Mm-hmm. this science and tech there is only current affairs, nothing else, right? Yeah, so these are Okay. the standard books. Okay, so thank you for this list. I guess it's gonna Hmm, help a lot of people here who are yeah. watching us. Hmm, Since you've said in hmm, the beginning of the session itself that there are many questions that are related to science and technology and environment that have been asked in hmm, the films. hmm. So, how to cover that effectively? Are the book lists that you've suggested, is that enough, or is it some other No, strategy they have to opt for? no, no, no. See, 2 things. See, when I had my interview
first time. So what happened was, Mars orbiter mission was recently launched. So we crammed all the payloads and everything that is there in there, right? So what happens was when I reached there in the interview, and they're asking me कि CDMA phone की working बताइए, CDMA phone की working बताइए, which is totally out of context. 2000s के अंदर आते थे वो phone. My point is, Mhm. साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना वेग सब्जेक्ट है कि आप उसके अंदर सी, अगर आप हिस्ट्री के अंदर 2 महीने देते हो तो आपके उससे क्वेश्चंस निकलेंगे। साइंस एंड टेक में आप एक Mhm. साल देते हो तो गारंटी नहीं है आपको क्वेश्चन आता होगा। सो पहली बात तो साइंस एंड टेक की प्रेफरेंस आपको पीछे रखनी है। दूसरा, Mhm. see, with coming of this, with blooming of these so many coaching institutes and so many teachers and so many faculty and so many options available, students are getting everything very easy. What they are dependent on a current affair magazine which is available. लेकिन इन सबसे पहले Mhm. 4-5 साल पहले हम योजना बोलते थे पढ़ने के लिए। नाउ जनवरी के अंदर, जनवरी 2020 में योजना का एडिशन आया था एनवायरमेंट का। 5 क्वेश्चंस इन दिस ईयर प्रीलिम्स वर फ्रॉम दैट ओनली बुक। सिर्फ 4 पेज का आर्टिकल्स थे उसके अंदर एनवायरमेंट के। या रिसेंटली अभी अगर आप देखें सितंबर के अंदर टेक्नोलॉजी का एक एडिशन आया था जिससे इस साल के प्रीलिम्स के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। सो माय पॉइंट इज, फॉर कवरिंग एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट का हर साल इकोनॉमिक सर्वे में एक वॉल्यूम 2 के अंदर एक स्पेशल डेडिकेटेड चैप्टर आता है कि गवर्नमेंट कौन कौन सी स्कीम्स फॉलो कर रही है, कौन सी करने वाली है। एक तो वो आपको पढ़ना जरूरी है। दूसरा, योजना आपको सब्सक्राइब 100% करनी है। और उसका जो, सी, हम नॉर्मली कहते थे जिसका प्री निकलता है उसे योजना पढ़नी है, लेकिन विद द चेंजिंग इन ट्रेंड नाउ, व्हाट यू हैव टू डू इज, आप योजना सब्सक्राइब कर लें। आप उसके जो हेडिंग होती है, लेट्स से, सी, इस बार लास्ट लास्ट मंथ आपका इंटरनेशनल रिलेशंस पे आया है, क्या कहते हैं, योजना की हेडिंग, और उसी में से मैक्सिमम आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। वंडरफुल बुक। सो फॉर कवरिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, यू हैव टू स्टडी योजना। यू हैव टू स्टडी योजना। इंडिया ईयर बुक के जो एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के चैप्टर्स होते हैं वो, और उसके साथ साथ जो आप नेचुरल अपनी मैगजीन्स करते हो करंट अफेयर्स के लिए, दैट्स इट। कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं है इसके लिए। लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, if you follow Yojana's edition of environment and science and tech and the India yearbook, you will have no problem in that subject, right? You have to do that. Thank you, sir. I guess it's going to help a lot of people Hmm. again. Okay, So the धीरे next बोले। question is, Yeah. how far are Hmm. the test series important for prelims, and how many test series should people attempt before giving their prelims? Okay. See, there are two things that I see aspirants doing. See, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं विद दिस न्यू अर्बन कल्चर एंड ऑल, स्टूडेंट्स रात को बहुत Mhm. पढ़ते हैं, राइट? वो Yeah. एक सेशन है। पर आपको देखो, आपको जब पढ़ना है आप पढ़ें। पॉइंट इज आप पढ़ें, राइट? दैट इज Mhm. इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग इज आपको एग्जाम भी ध्यान में रखना है, राइट? जैसे एथिक्स के अंदर स्कूल होते हैं ना, एंड Mhm. बेस्ड स्कूल, एंड सी, वेरी interesting thing, when we used to play basketball in school, so what happened is, Mhm. आप जीतोगे तब बास्केटबॉल में जब आप स्कोर करोगे, राइट? जब आप बास्केट Mhm. स्कोर करोगे तब जीतोगे। तो हम क्या होते थे, हम जब ड्रिबल कर रहे होते हैं बास्केटबॉल को, तो हम नीचे बॉल को देखते हैं कि वो इधर उधर तो नहीं Mhm. जा रही है। तो आपका कोच आके आपको क्या बताता है कि यू हैव टू लुक एट द ओपोनेंट, बिकॉज यू हैव टू बीट ओपोनेंट एंड देन स्कोर बास्केट। ड्रिबल करने के मार्क्स नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? सो द Mhm. पॉइंट इज, आप Yes, sir. जब मर्जी पढ़ें, आप जितना मर्जी पढ़ें, Mhm. लेकिन मॉर्निंग में 9 to 5 अगर आपको नींद आती है, अगर आपको नींद आती है तो आप वेब सीरीज देखें, मूवी देखें, लेकिन चेयर पे बैठ जाएं और सोए ना। क्योंकि आपकी बॉडी को ना वो आदत पड़ जाती है कि आपके एक्टिवनेस लेवल, बहुत सारे लोगों का सीसैट खराब हो जाता है क्योंकि उन्हें 2 से 4 के बीच में Mhm. नींद आ जाती है, because they are not habitual Mhm. with that. So you study whenever you want to study, but prelims के let's say 2-3 महीने पहले, you make your schedule in a way that from 9 to 5 you are not sleeping. You are not sleeping, you are active there. You are active there, Mhm. आपको वो करना है। Right, I'm sorry, what was the exact question? मैं पता नहीं कहाँ पहुंच गया। Exact question क्या था? Uh, Hmm. so the exact question was, what is Hmm. the importance of test series for prelims, Yes, and how yes. many Hmm. series should we attempt before giving a नाउ prelims? नाउ देखिए, अगर आप किसी बहुत बहुत इस्टेब्लिश टीचर को बोलें कि आप प्रीलिम्स का एग्जाम दें, मैं Mhm. आपको लिख के देता हूं, उन्हें भी 55-60 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते होंगे। दे विल बी ऑल्सो स्कोरिंग 110, 105 और 100। तो जो जितने भी Mhm. एस्पिरेंट्स होते हैं, आप कितना भी पढ़ लें,
आप 90 टू 110 के बीच में ही आपको क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि देखिए 1 साल की प्रिपरेशन आप रिवाइज नहीं कर सकते 2 महीने में। तो जो आपको थोड़े से ज्यादा मार्क्स चाहिए, सी लेट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स के अंदर जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 ऑप्शंस में डाउट होंगे। लेट्स से बी हो सकता है या डी हो सकता है, हर एस्पिरेंट के साथ होता है, 2 ऑप्शंस में डाउट होंगे। अगर आप मैथ्स की प्रोबेबिलिटी पिक करें, लेट्स से आपके 90 मार्क्स बन रहे हैं जितने आपको क्वेश्चंस आते हैं, एंड 20 क्वेश्चंस में आपको डाउट है, 20 क्वेश्चंस में डाउट है। अगर आप मैथ्स देखें तो प्रोबेबिलिटी कहती है कि हाफ सही होंगे हाफ गलत होंगे। तो अगर आप उसे आंख बंद करके भी मार्क कर दें तो आपके आराम से लेट्स से 100 क्रॉस हो जाएगा स्कोर, अगर आप उसे अटेम्प्ट करें। बट ये जो मैंने आपको कहा है ये सुनने में अच्छा लगता है, सारे एस्पिरेंट्स को भी अच्छा लगेगा, पेपर में इतनी हिम्मत नहीं होती है, आप कांप रहे होते हो कि हम तुक्का नहीं मारेंगे। ये हिम्मत एग्जैक्टली। कहां से आएगी, ये हिम्मत कहां से आएगी जब आप मॉक टेस्ट सीरीज देंगे। ये जो मैंने आपको टेक्निक बताई, सी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे कहीं जाएंगे, टीचर को आके क्या बोलेगा, एलिमिनेशन टेक्निक यूज किया करो, एजुकेटेड गेस मारा करो, तो उन्हें सुन के अच्छा लगता है पर पेपर में हिम्मत नहीं होती है। तो you एग्जैक्टली। have to practice all these techniques in the test series and then you have to sit in prelims, ताकि आपके लिए वो नया माहौल ना हो। देखो, अगर आप नर्वसनेस की वजह से, ये अटेम्प्ट करने की ना वजह से हार जाते हैं, तो आप देखिए आपका अगले साल भी प्रीलिम्स नहीं होगा। द रीजन इज आप रेस के अंदर कंटेंट की वजह से नहीं हारे, आप एक्स्ट्रा एनवायरमेंटल फैक्टर से हार गए, इसलिए नहीं रेस हारनी है। हारे तो इसलिए हारे कि कंटेंट नहीं आता था, नॉट बिकॉज ये चीजें नहीं होती है। सो द आंसर इज यू हैव टू एटलीस्ट गिव 30 टेस्ट बिफोर सिटिंग इन प्रीलिम्स। पहले सेक्शनल टेस्ट दीजिए, जो चीजें आपको नहीं आती है वो आप अपने नोट्स के अंदर ऐड करिए, करंट अफेयर्स भी वहां से प्रिपेयर हो जाएगा। राइट, दिस यू हैव टू डू, बट यू हैव टू गिव दैट। सर, हाउ टू राइट सर। हैंडल, ओके आई एम जस्ट सीइंग वन प्रेशर क्वेश्चन। ड्यूरिंग एग्जाम। हाँ, हाउ टू यस हैंडल सर। प्रेशर ड्यूरिंग द एग्जाम। देखिए, आंसर सेम है। लेट मी टेल यू, जो इंसान लेट्स से जिनका लेट्स से आईपीएस निकल जाता है, जिनका आईएएस में सिलेक्शन नहीं होता, वो फिर से एग्जाम दे सकते हैं। I know lot of my students also who have cracked IRS IPS and they are giving IAS exam. You know, they are also very nervous when they are sitting in prelims or in mains. तो आप देखिए, आप ह्यूमन ही नहीं होंगे अगर आप नर्वस ना हो। लेकिन हाँ, अगर आप 30 मॉक टेस्ट के अंदर, देखिए आप ना एक एक्सेल शीट बना लो या एक पेज बना लो, टेस्ट 1 में मेरा 80 स्कोर आ रहा था, 60 स्कोर आ रहा था, एंड तक 100 आ रहा है। तो उसके बाद आपको खुद ही कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जब मैं मॉक टेस्ट के अंदर 100 स्कोर कर रहा हूँ, 120 स्कोर कर रहा हूँ, तो प्रीलिम्स की कट ऑफ तो यार 98 100 तक जाती है, मैं कर ही लूंगा। सी यू नो व्हाट इज वैक्सीनेशन, जैसे अभी कोविड की वैक्सीनेशन चल रही है। लेट्स से जो भी डिजीज होता है ना, वो वीकेंड फॉर्म में आपके बॉडी में डाल दिया जाता है, ताकि जब एक्चुअल में डिजीज अटैक करे तो आप स्ट्रांग हो उस चीज के लिए। तो जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए वैक्सीनेशन है। आप वो प्रेशर वहां पे अच्छे से 9 से 1 बजे बैठे, 9:30 से 11:30 बैठे आप मॉर्निंग में, टेस्ट दें ऑनेस्टली, कोई चेक नहीं करेगा आपको, आपका करियर है। ऑनेस्टली टेस्ट दें, ऑनेस्टली अपने मार्क्स चेक करें, और एक बार आपको हो गया, थोड़ा सा नर्वस आपको लगेगा, लेकिन दिस इज योर वैक्सीनेशन फॉर योर प्रीलिम्स, यू हैव टू डू इट, देयर इज नो अदर सॉल्यूशन टू दिस, यू हैव टू डू दिस। Right, sir. Thank you, sir. हम्म, हम्म, There was also a question in the that has been asked हम्म, by the audience that if we fail one time, how do we keep ourselves up and how do we not get ourselves demotivated from that failure? यस यस यस, आई गेट दैट। देखिए, सी इसका भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करके दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बोरिंग ना लगे। देखिए, आपने वाटर देखा है, वाटर की प्राइमरली 3 स्टेट्स होती हैं, It लिक्विड, changes its सॉलिड एंड shape. गैस, है ना, और सुपर कूल्ड वगैरह भी, प्राइमरली 3 चीजें होती हैं। आप देखिए वाटर जो नेचर के अंदर है, अच्छा अब ऐसे देखना, वाटर जो नेचर के अंदर है उसकी एक स्टेट है, लेट्स से दिस इज वन स्टेट, राइट। इसको लिक्विड स्टेट में जाना है और अपना स्टेट ऊपर लेके जाना है, लिक्विड स्टेट में जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्न करना पड़ेगा, उसके बाद ही गैसियस Mm-hmm. फॉर्म में पहुंचेगा। सी नेचर आपको एक चीज बहुत अच्छे से दिखा रही है, बहुत अच्छे से दिखा रही है, वो ये है कि नेचर में वाटर को भी अपनी हर बार स्टेट बदलने के लिए 100 डिग्रीज पे बर्न होना पड़ता है। अब आप लोगों का या एस्पिरेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है, आपके 60 इयर्स आगे बनने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है, अब आप कहीं पार्टीज में जाते हो, आपको कोई भाव नहीं दे रहा है क्योंकि आपकी ये अभी स्टेट है, nobody cares about you, you want your status to rise, you want your status to rise in the society, like I'm no offense taken, you want your status to rise, right। Mm-hmm. अब वाटर से ही सीखो, अगर Right. आपको अपना स्टेटस राइज करना है,
तो 100 डिग्री पे तो आपको भी बर्न होना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या, एस्पिरेंट सोचते हैं कि हम 50-60 डिग्री तक खुद मेहनत कर ले, मेहनत कोई और कर ले, लेकिन स्टेट हमारी चेंज हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। एंड वेरी नाइसली लोग हिस्ट्री से स्केयर्ड होते हैं, तो मैं एक चीज बता देता हूँ। सी आप जानते हैं इंडिया में सबसे ज्यादा जो टेम्पल्स हैं वो राम जी के हैं, सबसे ज्यादा टेम्पल। इसलिए नहीं है कि ही इज अ गॉड, वो मिरेकल्स करते हैं, क्योंकि आप देखिए राम जी की लाइफ स्टोरी में भी बहुत सारा एनालिटिकल पावर है कि जेंडर इक्वालिटी और उस सबको लेके उसको साइड में रख देते हैं। राम जी के इतने सारे टेम्पल्स हैं और इतने सारे इंटेलेक्ट्स उनको फॉलो, पता है क्यों करते हैं? क्योंकि आप देखिए, आप उनकी लाइफ स्टाइल देखिए, ही इज अ ह्यूमन फॉर्म ऑफ गॉड ऑन अर्थ, राइट? विष्णु जी के अवतार है। आप देखिए, ही इज अ प्रिंस रेडी टू बिकम अ किंग, एंड हिज स्टेप मदर सेज कि ओके यू हैव टू गो इन एक्साइल फॉर 14 years। ही सेज ओके आई विल गो, ओके आई विल गो, डोंट वरी। चला जाते हैं। हिज वाइफ इज किडनैप्ड, हिज वाइफ इज किडनैप्ड, पॉसिबली द एरर ऑफ हिज ब्रदर, बोल के गए थे रुकना है, लेकिन रोने की बजाय क्या बोलते हैं, चला ढूंढते हैं, लेट्स फाइंड द सॉल्यूशन, राइट? पीपल से यू आर नॉट अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज ऑफ सीता जी एंड ऑल, ही लीव्स हिज वाइफ फॉर गुड गवर्नेंस, राम राज्य। नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग टू टेल यू इज, see Krishan ji, you see Krishan ji, he is also human form of God on earth, and he was born in a prison, and his own mama ji was about to kill him. So what I'm planning to tell you is, history teaches you one thing, that even God in human form, who is a king also, will have to face problem. तो आप तो कुछ भी नहीं है, आप तो कुछ भी नहीं है, आप फेल हो गए हैं। मेहनत करो और आगे निकलो, और टेस्ट सीरीज आपको मदद करेगी। देखो यूपीएससी की प्रॉब्लम क्या है कि आपको कोई चेक नहीं कर सकता आप कितना स्कोर कर रहे हो कितना नहीं। तो टेस्ट सीरीज दो, आपके 90 स्कोर आ रहे हैं, देखिए मोटिवेशन खुद को देते रहना है आपको कि अच्छा मेरे को अब 100 स्कोर करना है, अब 110 करना है। पर ये तो आपको करना पड़ेगा, ये तो आपको करना पड़ेगा। गॉड टीचेस यू अ वे ऑफ लाइफ, फॉलो दैट, राइट? यू कैन नॉट सिट इन दैट। या That's so very good analogy been given. So I guess it's going to या inspire a lot of people there. Thank you so हाँ much, sir, for that. ओके So हाँ the questions that have been asked about how to cover current affairs in a या comprehensive manner, since you've already, I guess, I've हम्म told a little bit about it. Just हम्म I hope that you can just हाँ हाँ, brief us वेरी about क्विकली वेरी how. क्विकली, देखिए देखिए, the primary issue till the March, and that till March you have to cover your static syllabus जितना भी है, जितना भी आपका Right. सिलेबस है। और देखो करंट अफेयर हमेशा सेक्शनल करने चाहिए, मंथली नहीं करने चाहिए। सेक्शनल का मेरा मतलब है लास्ट प्रीलिम से आपको पिक करना होता है। तो लेट्स से आपका एग्जाम इस बार प्रीलिम्स पोस्टपोन हो गया था, पर आप जून ही पिक करेंगे। तो लास्ट जून से लेके लेट्स से आज आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हैं, तो आप पॉलिटी पढ़ने बैठे हैं, आपने पॉलिटी का पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ लिया है, तो आप करंट अफेयर्स मैगजीन पिक करिए लास्ट जून से। उसके अंदर करंट अफेयर्स में जितना भी पार्लियामेंट रिलेटेड करंट अफेयर है, आप सिर्फ सेक्शनली वो कवर करिए। या आप ऐसे पिक कर सकते हैं, आपने पहले पॉलिटी का स्टैटिक पोर्शन किया, तो आप लेट्स से दिसंबर में बैठे हैं, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर का आपने पॉलिटी सेक्शन कवर कर लिया। सेक्शनल Yes. एनालिसिस करना है, और सेक्शनल एनालिसिस ऐसी इकोनॉमी ऐसी एनवायरमेंट हर एक का। एक बार आपका सेक्शनल एनालिसिस हो गया, तो जब आप मार्च के अंदर पहुंचेंगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव वो आते हैं, पीटी 365, पीटी 365 कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज, तो आप वो फॉलो कर सकते हैं। और दूसरी चीज दैट आई मस्ट टेल यू, जो योजना के टॉपिक्स हैं आपको सब्सक्राइब करके रखनी है मैगजीन्स, जो योजना के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, यू हैव टू सी दैट ऑल्सो, you have to see that also. So sectional and then comprehensive, that is the right way to go about it. Thank you, sir. I'll also tell about the program that we run Hmm, at Guide IAS. hmm, We compile the current affairs from various hmm. websites and the newspapers like the Indian Express, the Hindu, PIB, and then we give it off at 1 rupee per day. So if people want, Oh, they can that's also superb. subscribe to Huh. that. Yes, Yeah, sir. We actually, also I no, donate. actually, I saw one of your question. I answered that also, and it was wrong, I guess. But no, but yes, I actually answered one of it. It is a wonderful program to all the aspirants. See, just 2 minutes I'll take. See, two Yeah. things that one thing that every aspirant must remember is never be afraid, never be arrogant of more knowledge in prelims in UPSC exam, and never be ashamed of less knowledge. प्लीज रिमेंबर दिस। अगर मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं कि हाईएस्ट पॉल्यूटिंग ग्रीन हाउस गैस क्या है, और आपको आंसर आता, आप कहते हो सर CO2, और मैं बोल दूं अरे तुम्हें इतना भी नहीं आता है तो वाटर वेपर होता है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कुछ,
तो आप देखिए, मैं भी गलत हूं और आप भी गलत हो। ना तो आपको कम नॉलेज से शर्म आनी चाहिए, एम्बैरेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि देखो जीएस किसी के घर की नहीं है, पढ़ोगे सीख लोगे। और दूसरा, आपको अपनी नॉलेज की एरोगेंस भी नहीं रखनी है। सो आई saw your program. It's a wonderful program. People should consider that. And I also want to add that, if you want to also study free lectures and all, so I have a YouTube channel also. You can see there, right? Naman Sharma. I'll give you the link. You can see there are free, and I'll be running one PCS course for free revision course on the YouTube channel. So if students want, they can see that, and a Yojana series also that will be free of cost for everyone. So if they want, they can see it on the YouTube channel. On the YouTube channel, I'll send you the link. And one last thing that I must tell to all the students is, पढ़ने का मन नहीं है तो आप मूवीज देखो इंडिविजुअल। ग्रुप ग्रुप थोड़ा अवॉइड करो, इंडिविजुअल मूवीज देखो। बट नेवर एवर थिंक कि पढ़ाई नहीं हो रही तो पेपर नहीं निकल सकता। अपने ऊपर आपको कॉन्फिडेंस रखना है, राइट? आपकी आज 2 घंटे की सिटिंग कैपेसिटी है, ट्रस्ट मी, मेहनत करोगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप हार मान जाओगे फिर नहीं बढ़ सकती है, राइट? सो कीप ऑन स्टडिंग, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, हफ्ता पढ़ने का मन नहीं है मत पढ़ो, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को चैलेंज जरूर करते रहना है आपको, राइट? दैट इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल टू ऑल ऑफ यू, राइट? एनी अदर Right. क्वेश्चन? No, no, so I guess we're done with the questions, and there are no ओके। other questions from the audience as well. Thank ओके, you so much, sir, for the thank you. wonderful session. No, it was it's my pleasure. It was a very amazing session. And I hope we can have such sessions much more. You can take the doubts of the students, or अगर compiled doubts Right. होंगे, तो I'll be very happy to take the session and all, right? And Yeah, just keep on surely, working sir. hard, and all the best to all of you, right? Thank you. Right. Thank you so much, sir, for Thank you. coming. Thank Pleasure you. was all ours. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everybody, for joining. Bye bye.